morning, 10th class. Now we will continue the same chapter in economics, the chapter 2, that is sectors of Indian economy. We were discussing the topic, we had covered the topic disguised unemployment and what are the steps to be taken to remove disguised unemployment. Now we will talk about the topic how to create more employment. How we can create more employment? What are the steps to be taken to create more employment in all these three sectors? Okay. So right now various entrepreneurs are attracted towards various companies because they are getting a huge income in a particular sector. If they are employed in the secondary sector, if they are employed in the tertiary sectors, they are attracted towards various types of industries in search of good amount of salary. Okay. Employment opportunities are generated in India is a developing country and there is always a good demand for goods and services. India is a developing country, all of you know that, and there is a huge demand of goods and services because India is having a large population and those particular citizens are having a huge demand of various types of goods and services. Foreign investors want to invest in India but they feel discouraged due to the lack of infrastructural facilities. India is a huge market but the foreign investors who are wanting to invest in India, they do not get interested in investing in India because the infrastructural facilities over here is not good. So what the Indian industries should focus, what the Indian government should focus that to improve the infrastructure facilities so that they could attract the foreign investors to invest in India. Okay? By providing infrastructural facilities, we can attract, I was saying about this, we can attract the foreign investment just by improving the infrastructural facilities. If the infrastructural facilities are not good, the foreign investors would not invest in India. Because if they are investing in India, they are investing with a greed that they would get more amount of profit in India. The foreign investors wanted to invest in India because India is having a large population and India is a very good market and India has a huge demand of goods and services. So the foreign investors wanting to invest in India, but they are just not doing it because of the lack of infrastructural facilities. So if the government would take some measures to improve the infrastructural facilities, then they could attract a large number of foreign investors in India. Okay. What are those infrastructural facilities? Those are better roads, water supply, power supply, sanitation, sewage, etc. Such type of facilities should be there for the foreign investors so that they could invest. We know that there is an underemployment in agricultural sector. There are farmers, so we have to improve the agricultural sector. A large number of people are employed in agricultural sector, but they are not able to do agriculture as efficient as it is. So I was telling about you so look at infrastructure facilities. These are the infrastructural facilities. These infrastructural facilities attract the foreign investors to invest in India. Now I was talking about the agricultural sector. Agricultural sector is, you can see that in the agricultural sector there is a large number of people employed. But they are largely doing the seasonal work because they are not having that much amount of good machinery, that much amount of good irrigation facilities, chemical fertilizers, pesticides. Such type of things are required in the agricultural sector and the government should take various steps to improve the agricultural facilities in the village. Okay. If government comes to their help or banks provide loan for constructing wells for irrigation, they will be able to irrigate the land and they can use the land for the second crop in the Rabi season. Okay. तो अगर बार बार एक पर्टिकुलर सीजन है, अगर पर्टिकुलर सीजनली क्रॉप लगाते रहेंगे, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी तो पर्टिकुलर
क्रॉप के लिए उन्हें मानसून सीजन पर डिपेंड होना पड़ेगा। जब मानसून सीजन आएगा तब वो क्रॉप हार्वेस्ट होगी, तो उसमें उनका आधे कह सकते हो कि आधे से ज़्यादा साल चला जाएगा, 7 से 8 महीने चले जाएंगे, तो उनके पास दूसरे क्रॉप के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो ज़रूरी ये है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाए ताकि जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएँ और जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट हो पाए, ताकि वो पर्टिकुलर लैंड दोबारा नई क्रॉप के लिए उसी साल में तैयार किया जा सके, जिससे किसानों को लाभ। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि लोग ट्यूबवेल्स लगवा सकें, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स लगवा सकें, पावर सप्लाई क्या इम्प्रूव की जाए। बहुत सारे विलेज फैसिलिटीज़, विलेज एरियाज में पावर सप्लाई फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, अभी भी वहाँ पर बिजली रेगुलरली नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी कह सकते हैं विलेज में अभी उसकी कमी। अगर ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं की जाएंगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो नहीं करेगा। ठीक, एक और क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं, डैम्स, कैनाल्स, ये सब भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। With the increase in the irrigation facilities, the farmers will be able to produce more. जितना ज़्यादा irrigation facilities improve होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर्स को होगा। और फार्मर्स कह सकते हो कि हमारे अन्नदाता अगर फार्मर्स को अगर हम अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, फार्मर्स की कंडीशन हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ इनजस्टिस कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, अलॉन्ग विद द वाटर वी नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी देने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी, मैंने उस बार आपको बताया था, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये क्या करता है, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसान को, वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे किसान को क्रेडिट मिल जाता है। उस क्रेडिट के द्वारा वो जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो थ्रेशर्स हो, हार्वेस्टर्स हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, यूरिया हो, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें वो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट लेके बैंक से खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्रामीण बैंक उनकी हेल्प करते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारी होती हैं। ठीक, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी क्रिएटेड बाय लोकेलिटी स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज। और कभी कभी एक इस टाइम हम क्या ले सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे शुगर प्रोसेसिंग है, for example, large amount of sugarcane is produced in the village, and if that sugarcane could be processed in the village itself, then what it will result that most of the villagers will get the employment in those particular industries in the village itself. They don't have to go to any other city for the search of employment. So we need to set up some small industries, some processing small industries in the village itself, so that more number of villagers could be employed over there. Okay? जैसे दाल प्रोसेसिंग मिल हो गई, फैक्ट्री, गुड़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, जैसे बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम विलेजेस में ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो विलेजर्स हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉय कर लेंगे, उनको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, उन्हें अच्छी इनकम मिल जाएगी, उनकी फैमिली इनकम इम्प्रूव हो जाएगी, तो उनकी लिविंग कंडीशंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद होता है फैमिली की इनकम इंक्रीज करना और फैमिली की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। एम्प्लॉयमेंट क्यों आदमी चाहता है? ताकि उसे अच्छी इनकम मिले, ताकि उसकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाए और जो ज़रूरत का सामान है वो आसानी से वो लोग खरीद सकें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर तो वो लोग कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर के द्वारा वो ग्रेनरी तो अपनी प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको अगर एडिशनल कुछ लिविंग कंडीशन अपनी अच्छी करनी है तो उनके एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग विलेजेस में खोल सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग, रोड्स, रेलवेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, पाइप वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल, पाइप गैस, पब्लिक वर्क्स, कवरिंग रोड्स, मेजर डैम्स एंड कैनाल वर्क्स फॉर इरिगेशन। इतने सारे फील्ड्स हैं वर्क के लिए। एजुकेशन की फील्ड भी है, हेल्थ की फील्ड है, सैनिटेशन की फील्ड है, हाउस कंस्ट्रक्ट करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, रेलवेज की कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ये सारे जो ये तो कार्य हो रहे हैं ना, ये तो पब्लिक यूटिलिटीज़ कहलाते हैं। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर पब्लिक यूटिलिटीज़ विलेजेस में कंस्ट्रक्ट कर लें तो बहुत सारे विलेजर्स को विलेज में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स अबाउट 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। सिर्फ
बहुत सारी जॉब्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। As per planning commission, it can give additional employment to more than 35 lakh people in the tourism sector. Tourism sector में 35 लाख लोगों को employment दी जा सकती है। Every sector has potential for increasing employment. Every sector, whether it is tertiary, whether it is secondary, whether it is primary sector. तीनों sectors में employment की बहुत सारी opportunities available हैं। जैसे कि रूरल एरियाज में आपको मैंने पिछले साल पढ़ाया था कि स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके तहत क्या होता था, 100 days ऑफ assured employment every rural household। ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्राप्त दिया जाता था। अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता था तो उन्हें बेरोजगारी का दिया जाता था। उनके डिमांड, जब उन्होंने जॉब्स डिमांड की, उसके अगर 10 दिन या 14 दिन के अंदर उन्हें जॉब्स नहीं दिए गए तो उनको उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक बहुत अच्छा तरीका था रूरल एरियाज के लोगों को की इनकम इम्प्रूव करने का। ठीक है, उसके अलावा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, तो जो फूड स्केर्सिटी फेस करते हैं बहुत सारे विलेजर्स, उनके लिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। देखिए मैंने बताया था इफ द गवर्नमेंट इट विल प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती 100 days एम्प्लॉयमेंट तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, बेरोजगारी भत्ता देगी गवर्नमेंट। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मनरेगा की ये स्कीम में यही चीज़ें इंक्लूड की गई, 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, श्योरली एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। जैसा कि आप वर्ड से समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड यानी सारी चीजें व्यवस्थित होना, हर चीजें एक निश्चित सिस्टम से चलती है, एक निश्चित प्रोसीजर से चलती है। और मैं रियलिटी में अगर कुछ एग्जैक्ट करके करूँ तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट की सारी जो भी मापदंड है उनके हिसाब से जो सेक्टर्स वर्क करते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। और जिनका गवर्नमेंट के किसी भी नियम के तहत काम नहीं करते हैं, उनका कोई गवर्नमेंट के नियम से लेना देना नहीं है, ऐसे सारे सेक्टर क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित सेक्टर्स। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइज्ड sector includes all public sector establishments and private sector establishments registered under the one of the acts such as Company Act, Factory Act, Societies Act और Cooperative Act और Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishments Act। यानी गवर्नमेंट की कोई ना कोई लॉ से को वो फुलफिल करते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए किसी न किसी कानून के तहत वो कार्य करते हैं। ऐसे सेक्टर, ऐसे इंडस्ट्रीज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आप लोग को मालूम है। पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स किसे कहते हैं? वो सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं, ये ओनरशिप के आधार पर। बोर्ड देखिए, ओनरशिप के आधार पर कहते हैं 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ओन होती है वो कहलाती है पब्लिक सेक्टर, और वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटलिस्ट ओन होती है, कैपिटलिस्ट मतलब कोई पूंजीवादी व्यक्ति जिसने अपना खुद का पैसा लगाया हो, उसके द्वारा जो ओन इंडस्ट्री होती है, जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्री कह सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, या टिस्को इंडस्ट्री, ये सब क्या है आपकी प्राइवेट सेक्टर। और हेल, ये आपकी क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी पब्लिक सेक्टर।
तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आपकी डिफरेंट। अब इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले तो मैंने आपको बताया कि दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट द्वारा। पहला मतलब इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लिए, रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्टर्ड बाय द सेकेंड they follow its rules and regulations। गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होगी तो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ये फॉलो करेंगी। ठीक है, they enjoy regular and assured work। आपको assured work मिलेगा, आपको निश्चित रूप से कार्य दिया जाएगा। They get अपॉइंटमेंट लेटर एज वेल। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपको जॉब मिलेगी। आपको ऐसा ही नहीं जॉब पे रख लिया जाएगा, आपको ऑफिशियली रखा जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा दैट यू आर एम्प्लॉयड ओवर हियर। ओके, देयर जॉब इज सिक्योर्ड। जॉब आपकी सिक्योर रहेगी, कोई आपको निकाल नहीं सकता। आप नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के तहत चुने जाएंगे, तो आपको कोई भी कंपनी का हेड आपको निकाल नहीं सकता है। उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसे आपको नोटिस देना होगा। नोटिस पीरियड में आपको उसे जवाब देना पड़ेगा वो क्यों निकाल लाया। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए, तो कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, देयर आवर्स ऑफ वर्क आर फिक्स्ड। आपको फिक्स्ड आवर्स पे ही वर्क करना है। आपको 9 से 5 करना है तो 9 से 5 करना है। 9 से 5 के बाद आप तुरंत उठ के चले जाए। आपको वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी आपको कितना कहे। आपको गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि 9 से 5 काम करना है तो 9 से 5 ही काम करना है। 9 से 5 के बाद आपको चले जाना है। आपको फिक्स्ड आवर्स के लिए वर्क करना है। ठीक, और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ओवर टाइम का पैसा एक्स्ट्रा इनकम देगी। ठीक है, आपको पेड हॉलीडेज मिलेंगे। ठीक है, प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा। पेड हॉलीडेज मतलब हॉलीडे लोगे तो उसका पैसा दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तो हॉलीडे ले लो तो फिर पैसे भी कट सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी अगर आप जो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में आप वर्क करते हैं तो आपको पेड हॉलीडेज नहीं मिलते, लेकिन पब्लिक सेक्टर में आपको पेड हॉलीडेज मिलते हैं। ग्रेजुएटी भी मिलेगी, एक्स्ट्रा जो आपके TADA अलाउंस जो होते हैं वो आपको मिलेंगे, और पेंशन भी दी जाएगी। जब आप रिटायरमेंट आपका हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ आपके नियम थे। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट